Yeah, very good morning to all my dear students. It looks like a full house and we are enjoying it. So let's go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in these channels may be obtained through the routine Google image searches and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright owner's rights and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Okay. So now back to our. This is the last slide that we have discussed in the last session. Now we'll move to the next one. Bajan. Okay. So now next we are going to complete this topic in today's session. We have only two topics to complete. The first one is value chain analysis and the second one is SWOT analysis. That is strength, weaknesses, opportunities and threats. First we'll go with the value chain analysis that is given by माइकल पोर्टर. मेरे जन्म से पहले माइकल पोर्टर ने ये मॉडल दिया था वैल्यू चेन एनालिसिस जो कि काफी अच्छा था एंड इवन इन टुडेज डेज आज के डेट में लागू पड़ा है क्योंकि इसका पॉइंट जो है वो रिलेवेंट है. यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज आपको दिखाई देगी दैट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस. Those who are there in the business, they know the importance of value chain analysis. Now, you might have questions in your mind about ये value chain analysis हमें क्यों करना? क्योंकि आज अगर आपकी प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रही है, आज पार्ले-जी अगर ऊंचाइयों पे है, आज एप्पल अगर ऊंचाइयों पे है, आज बालाजी की वेफर सेल हो रही है, तो सभी जगह पे एक कॉमन रीजन है वो ये है कि whenever customer is spending money on particular product or services, they feel it's value for money. जब भी कोई कस्टमर के दिमाग में ऐसा आता है कि वो मैंने ये मास्क 2 रुपए का लिया है, आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस मास्क,
whatever the expectations were there from this mask has been fulfilled completely, then it's value for money. मैंने इसके 2 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, 50 दिए, irrelevant to that. मेरी जो भी नीड है, मेरी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, वो ये मास्क फुलफिल कर रहा है. It means it's value for money. I am happy with this mask. Now what I'll do next? I will suggest this one to that guy. बेटा ये मास्क अच्छा है, इसे आप परचेस करो. रीसेल में परचेस नहीं हो सकता है, वरना मैं सेल कर देता, बट मैं उसको सजेस्ट करूंगा. It is said by a great person, नाम मुझे नहीं मालूम, किसी ने ऐसा बोला है, your 10% loyal customers will give you 90% new business. जो आपके 10% loyal customers है, वो आपको 90% नया बिजनेस देंगे. और वो कैसे दे पाएंगे? जब वो खुद सेटिस्फाइड फील करेंगे, जब वो ऐसा फील करेंगे कि whatever the amount we have spent, it's worth to spend. जब वो ऐसा फील करेंगे तो वो दूसरे को बताएंगे, दूसरे तीसरे को बताएंगे, एंड सो एंड लेटर कंपनी जो है ग्रेजुअली ग्रो करेगी. सो नाउ द वैल्यू चेन एनालिसिस इज मेनली फोकसिंग ऑन द वैल्यू क्रिएशन इन द कस्टमर्स माइंड. कस्टमर के माइंड में वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए, फिर चाहे वो स्काईबैग हो, फिर चाहे वो वीआईपी हो, फिर चाहे अमेरिकन टूरिस्टर हो. ये सब क्या है? बैग्स के नाम, बैग्स की बैग्स बनाती हुई कंपनीज के नाम. तो कोई भी हो, तो वहां पे अगर कस्टमर फील करेगा तो ये प्रोडक्ट बढ़िया है, कस्टमर को उसमें से वैल्यू फील होगी, तो आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी. सो ये मॉडल जो है वो आपको वो बताएगा कि बेसिकली आपको कहां पे चेंजेस करने की जरूरत है, जिसकी वजह से कस्टमर के माइंड में आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की वैल्यू क्रिएट हो सके. सो लेट्स सी. The term value chain analysis refers to the value chain describes a way of looking at a business as a chain of activity. Business जो है उसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, सिर्फ एक एक्टिविटी से बिजनेस नहीं चलता. आज आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, वो फिर नेक्स्ट एक्टिविटी उसके ऊपर प्रोसेस होगी, वो फिर नेक्स्ट वो फिनिश गुड्स में कम होगा, उसके बाद मार्केटिंग, उसके बाद सेल्स, उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विसेज एंड सो ऑन. सो नंबर ऑफ एक्टिविटीज विल टेक प्लेस इन योर बिजनेसेस. अब उसमें से कौन सी एक्टिविटी आपकी सक्सेस के लिए क्रिटिकल है, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो द टर्म वैल्यू चेन डिस्क्राइब्स अ वे ऑफ लुकिंग एट अ बिजनेस एज अ चेन ऑफ एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट्स दैट कस्टमर वैल्यू. कस्टमर के दिमाग में वैल्यू क्रिएट होने के लिए प्रोडक्ट अच्छी है, टाटा की प्रोडक्ट अच्छी है, किंगफिशर की प्रोडक्ट लेविश है, बट डिपेंड्स. So customer value derives from 3 basic sources. Customer को value create कब होगी? ये 3 में से कोई भी एक चीज हो सकती है. या तो जब कस्टमर के पास कोई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो, जो मार्केट में काफी कम अवेलेबल हो, जिसके पास दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, जैसे कि कर्व एलईडी जो सैमसंग ने बनाया, कर्व एलईडी. तो वो लोग जो जिन्होंने 2.5 लाख 4 लाख रुपया खर्चा किया, they feel satisfied. तो भाई हमारे पास तो एलईडी टीवी, तो either आपके पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होनी चाहिए, whatever products you are going to give, वो थोड़ा हटके होना चाहिए. जैसे कि एप्पल फोन, लोग खुश है एप्पल फोन परचेस करते हैं, उसकी वैल्यू भी करते हैं, दूसरे को भी बोलते हैं कि भाई एप्पल परचेस करो. जैसा कि कुछ लाइक गैजेट्स है, उसमें लोग काफी सेटिस्फाइड है वो परचेस करने के बाद. क्यों? क्योंकि वो वैल्यू करते हैं, आइदर वो डिफरेंशिएटेड है, या तो वो प्राइसेस में कम है, या तो हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, हमारी जो भी नीड्स है, वो गैजेट्स, वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज फुलफिल करती है. जब ये तीनों में से कोई भी एक चीज आपकी कंपनी आप कर पाओगे, एट द टाइम आपके कस्टमर्स के दिमाग में बढ़िया वैल्यू जो है वो क्रिएट हो सकती है. कौन तीन चीज होगी? तीनों में से एक भी हो सकती है. या तो आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड रहेगी, या तो आप उसे कम प्राइस में सेल करोगे, या तो कस्टमर्स की जो भी नीड, वांट्स एंड डिमांड्स है, आप उसको एट अ टाइम सेटिस्फाइड कर रहे हो. जैसे कि अगर आपको प्यास लगी है, आपको पानी मिल जाता है, फिर चाहे किनले का हो, किंगफिशर का हो, बेली का हो, कोई भी हो, प्रोडक्ट डजंट मैटर, बट आपकी नीड सेटिस्फाइड होती है. दैट्स व्हाई वहां पे वैल्यू क्रिएशन होती है. सो ये तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है, ये तीनों भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, बट इसमें से कुछ भी एक तो होना ही चाहिए. अगर इसमें से कोई एक है तो आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी, आपकी कंपनी की मार्केट में अच्छी वैल्यू क्रिएट होगी.
So value chain analysis attempts to understand how a business creates customer value by examining the contribution of different activities. आपको लगेगा कि सर आप कब से बोल रहे हो एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी कोई नई एक्टिविटी नहीं है सभी कॉमन एक्टिविटी है जो बिजनेस में डे टू डे लाइफ में यूज होती है वो एक्टिविटीज आर वेरी मच राइट। तो वैल्यू चेन एनालिसिस है वो क्या करेंगे सभी एक्टिविटी को एक एक करके देखेंगे उसमें से फाइंड आउट करेंगे डिपेंड्स ऑन द फीडबैक कौन सी एक्टिविटी में मुझे चेंजेस करने की जरूरत है वो एक्टिविटी में चेंजेस करेंगे फिर से प्रोडक्ट मार्केट में जाएगी अगेन फीडबैक आएगा अगर फीडबैक अच्छा आ रहा है देन इट्स फाइन देन देयर इज नो नीड टू चेंज फीडबैक में कोई चेंज आ रहा है तो अगेन वहां पे एक्टिविटी में चेंज करेंगे एंड फिर से उसको मार्केट में भेजेंगे कैसे करेंगे क्या करेंगे मैं सब आपको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। सो सभी डिफरेंट एक्टिविटीज जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड वहां पे चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पे चेंजेस करेंगे। नाउ अगर हम इन हाउस बात करें कंपनीज के अंदर के एनवायरनमेंट की बात करें तो दो चीजें जो है वो मैटर करती है। इट डिवाइड्स द बिजनेस इन टू सेट्स ऑफ एक्टिविटीज दैट अकर्स विद इन द बिजनेस। द फर्स्ट वन इज स्टार्ट विद द इनपुट दैट फर्म रिसीव्स। आज कोई भी फर्म होगी वो कुछ ना कुछ इनपुट तो रिसीव करेंगे उसी के बाद वो इनपुट के ऊपर प्रोसेस होगी इनपुट के ऊपर सर्टेन ऑपरेशंस होंगे एंड लेटर ऑन वो इनपुट जो था वो ट्रांसफॉर्म होगा आउटपुट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस एंड देन फिनिश विद द फर्म्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड आफ्टर सेल सर्विसेज टू द कस्टमर्स। आज आपने वो जनरल का ऐसे लिया 60,000 का आया 70,000 का आया बढ़िया एसी लोगों से आपने काफी सुना है तो वो जनरल का एसी बढ़िया है उसमें स्टार रेटिंग नहीं आता पर फिर भी लोग उसको परचेस करते हैं। अब वो परचेस करने के बाद बंदा इंस्टॉलेशन के लिए ही नहीं आया तो आप क्या करें वहां पे जीरो वैल्यू क्रिएट होती है कंपनी की। बट यस उसी टाइम पे जैसे कि आपने एसी का परचेस किया या तो उसको ऑर्डर दिया एसी के साथ ही जो बंदा आता है वही इंस्टॉलेशन करके जाता है तो वैल्यू क्रिएट आप दूसरों को भी बोलोगे कि नहीं वो जगह का एसी भी अच्छा है और उसकी सर्विस भी अच्छी दोनों चीजें मिलती हैं। So after sale services are all now allows for better identification of a firm's strength and weakness since the business is viewed as a process। एक एक्टिविटी को प्रोसेस की ओर से देखा जाता है जैसे कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स वो एक प्रोसेस है उसके ऊपर आप ऑपरेशंस करते हो वो दूसरी प्रोसेस है उसके ऊपर आप ऑपरेशन के बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो वो भी एक प्रोसेस है वो भी एक एक्टिविटी है तो आपने उसको डिवाइड कर दिया तो अकॉर्डिंगली जहां पे आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी वहां पे आप सर्टेन चेंजेस जो है वो करोगे और फिर से उसको मार्केट में डालोगे। दिस इज द बेसिक वैल्यू चेन एनालिसिस। मैं आपको दो चीजें क्लियर कर दूं एग्जाम में आपको आधा क्वेश्चन भी आ सकता है प्राइमरी एक्टिविटीज 5 पॉइंट्स लिखने हैं पूरा क्वेश्चन आएगा तो बेसिक वैल्यू चेन एनालिसिस पूरा लिखना। नाउ मेन टू टाइप्स की एक्टिविटीज जो है वो यहां पे एक है प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। दूसरी एक्टिविटी जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है दैट्स व्हाई उसको आप सपोर्टिंग एक्टिविटीज बोल सकते हो जैसे कि फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। तो ये दोनों मिला के आपकी कंपनी को एक बढ़िया वैल्यू क्रिएशन में हेल्प करेंगे। नाउ प्राइमरी एक्टिविटी ये आपको चार्ट जो है ये ड्रॉ करना एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा बेसिक वैल्यू चेन एनालिसिस पूरा चार्ट या जो भी है आपको ये ड्रॉ करना। अगर आपको पूछते एक्सप्लेन प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस तो आपको सिर्फ 5 चीजें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपको पूछते हैं एक्सप्लेन सपोर्टिंग एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस वहां पे आपको 4 लिखनी है फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। नाउ let's go with the inbound logistics. Inbound logistics मतलब the basic raw material that form receives।
तुम है किसी के so so inbound logistics, the input that firms receive. आज इनपुट रॉ मटेरियल जो भी है वो कैसा आपकी फर्म में आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली गुजराती में कहेवत છે કુવામાં હોય અગડામાં. So whatever the inputs will be there, आप उसके ऊपर चाहे कितने भी बढ़िया प्रोसेस क्यों ना करो, कितने भी बढ़िया ऑपरेशंस क्यों ना करो, बट अगर आपका रॉ मटेरियल ही डिफेक्टिव होगा तो आपकी फिनिश प्रोडक्ट जो है वो भी डिफेक्टिव ही रहेगी. सो आज बेसिक प्रोसेस क्या है, ये सभी अलग-अलग एक्टिविटीज है, divided into different types of activities. Inbound logistics एक एक्टिविटी, operations दूसरी एक्टिविटी, outbound तीसरी एक्टिविटी, एंड सो. तो ये सभी एक्टिविटीज जो है यहाँ पे उसको डिवाइड किया गया. नाउ आपके पास रॉ मटेरियल आता है, आप उसके ऊपर अलग-अलग कई सारी प्रोसेसेस करते हो, देन उसको फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट कर देते हो. अब फिनिश गुड्स बढ़िया पैकेजिंग के साथ रेडी है मार्केट में सेल करने के लिए. तो नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी होगी, मार्केटिंग एंड सेल्स. आपको ये प्रोडक्ट, आप इसको थ्योरेटिकल के पॉइंट से मत देखिए, एज अ बिजनेस, एज अ एंटरप्रेन्योर आप इसको देखिए, इसको सोचिए कि कोई भी रॉ मटेरियल जब आप लाते हो तो डेफिनेटली उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना ही है, जिसके लिए आपको बेसिक प्रोसेस करनी है. देन गुड्स रेडी हो जाए उसके बाद आपको उसे मार्केट में डल करना है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड उसके बाद आपको वहां पे आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. सो दिस आर द प्राइमरी एक्टिविटी. नाउ अब ये ऐसे तो होगी नहीं, आपके पास यहाँ पे 100 करोड़ का रॉ मटेरियल आ गया बट आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, तो ये एक्टिविटी नहीं होगी. इसके लिए सपोर्टिव एक्टिविटीज जो है, जैसे कि फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, तो वो आपके पास होना चाहिए. इक्विवेलेंट टू योर कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल. जितना रॉ मटेरियल आप लाते हो उसके हिसाब से आपके पास फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. देन फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया वो भी काम नहीं चलेगा, मैन पावर भी चाहिए इसको चलाने के लिए. जो भी मशीनरी आपके पास है उसको चलाने के लिए मैन पावर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पैकेजिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सभी जगह पे आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसके लिए आपको मैन पावर को हायर करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, एंड सो ऑन. ये सब एक्टिविटी जो है वो आपको वहां पे करनी पड़ेगी. एंड उसके बाद टेक्नोलॉजी भी काफी मैटर करती है. आज मोरबी में सिरामिक इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुई थी, काफी साल हो गए उसको, तो सबसे पहले उन लोगों ने ढाबा टाइल्स बनाई थी. ढाबा टाइल्स मतलब ऐसी थोड़ी वो ठीक एकदम आती है एंड इतनी क्वालिटी भी वो बढ़िया नहीं होती है, ऐसी टाइल्स से उन लोगों ने शुरुआत की थी. फिर उसके बाद दे एंटर्ड इनटू द वॉल टाइल्स, दे हैव स्टार्टेड फ्लोर टाइल्स, देन विट्रिफाइड जीवीटी, पीजीवीटी, नैनो, डबल चार्ज, एंड नाउअडेज मार्बल टाइल्स. सो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इट्स पॉसिबल. तो ये जो है वो सपोर्टिव एक्टिविटीज है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते. And at last, procurement. How you are going to procure entire things. उसके ऊपर भी कस्टमर वैल्यू जो है वो डिपेंड्स करती है. Now, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ेंगे. कंडक्टिंग अ वैल्यू चेन एनालिसिस. ये पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ, फिर से यहाँ पे वापस आ जाते हैं. Now, let's see. मेरा खुद का खाकरा का प्रोडक्शन यूनिट है, तो मैंने वो खाकरा जो है वो मार्केट में सेल की. तो अभी मेरे को कस्टमर से फीडबैक मिला कि सर आपके खाकरा जो है वो क्वालिटी उसके मास काटी ना બધો વાંધો નહીં બેટા. તમે એમને બોલશો તો મને ખબર પડવાની, નહીં બોલો તો ખબર પડશે. અને બિંદાસ એમાં એવું છે, અમે 17 વર્ષ એક જગ્યાએ બેઠા છે, આજ કર્યું હતું. So it's a part of life. It's a part of life. You should enjoy. I don't. So, but જ્યારે હું ભણાવતો હોય ને, હું 20 મિનિટ ભણાવતો. Back to track. अभी मेरे खाकरा की बात हो रही, थोड़ा ध्यान दो. तो खाकरा जो है वो मैंने मार्केट में सेल की, तो वहां से मुझे रिस्पॉन्स मिला कि सर क्वालिटी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है.
तो मुझे यहाँ पे जो एक्टिविटीज दिख रही है उसमें से कौन सी एक्टिविटी में मुझे फोकस करना चाहिए? वेरी सिंपल क्वेश्चन। मेरे खाखरा जो मैंने सेल की है मुझे रिस्पॉन्स मिला कि सर क्वालिटी अच्छी नहीं है। वेरी ट्रू। सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में, मतलब आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसमें आपको चेंज करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिक आपकी क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ये एक पॉइंट था, ये एक एक्टिविटी आपने आइडेंटिफाई की। नाउ मैंने कस्टमर्स को खाखरा दिया, बढ़िया थे, टेस्ट वाइज भी बढ़िया थे, जीरा खाखरा मैंने दिए थे। अब किसी कस्टमर ने मेरे को बोला कि सर टेस्ट बेस्ट सब बढ़िया है, उसमें जो क्यूमिंग सीड्स आते हैं, जीरा जो आता है वो थोड़ा कम है, अब थोड़ा उसमें जीरा ज्यादा डालें। तो अब मुझे कौन सी एक्टिविटी में ध्यान देना? ऑपरेशंस। वेरी गुड। तो अब मुझे ऑपरेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा, उस हिसाब से मुझे उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। नाउ तीसरी क्वेरी जो है वो मार्केट में से ऐसी आई कि सर आपकी प्रोडक्ट बढ़िया है, क्वालिटी भी बढ़िया है, बट पैकेजिंग नहीं जम रहा है। तो कहां पे फोकस करना है मेरे को? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। क्योंकि एक बार मेरी प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो गई है, उसके बाद जब उसको मार्केट में जा रहा हूं, लेके जा रहा हूं, तो मेरे को वहां पे पैकेजिंग काफी मैटर करे। नाउ मेरी प्रोडक्ट मार्केट में बढ़िया चल रही है। अब महाराष्ट्र से मुझे फोन आया कि भाई यहाँ पे भी आप अपनी प्रोडक्ट भेजो, यहाँ पे तो उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, दूसरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग एंड सेल्स इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर। और वहां पे सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स से नहीं चले, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं एक्सपांशन कर रहा हूं तो मुझे फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस हिसाब से सेट करना है। आज मेरी प्रोडक्शन की कैपेसिटी 5 टन की है, अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे को फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड जो भी हो, ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास जो मैन पावर था वो गुजरात के लिए सफिशिएंट था, बट अगर मैं महाराष्ट्र में जा रहा हूं तो वहां पर मुझे एक्स्ट्रा मैन पावर हायर करना पड़ेगा। सो एचआर में भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा ना। अब तीसरी क्वेरी आई मार्केट में सर कि सर आपके खाखरा जो है वो अच्छी है, एकदम खाने में भी बढ़िया है, बट अगर थोड़ा पतला हो सके और साइज छोटी हो सके तो हमें वो कैरी करने में आसानी रहेगी। तो कहां पे चेंज करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी। सही, यस। तो टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो सिस्टम है, जो मशीन है, वो एज इट इज ही काम करती रहे, बट अगर आपको उसकी साइज में चेंज करना है, उसकी थिकनेस में चेंज करना है, तो वहां पे आपको अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड करनी है। So this is the practical example of value chain analysis, the critical examination of each and every activity according to your business. तो आज ऐसे भी कई सारे बिजनेसेस हो सकते हैं जहां पे आप किसी एक एक्टिविटी में चेंज करोगे आपको सक्सेस मिल जाएगी। आप किसी एक एक्टिविटी में थोड़ा फोकस करके उसको रीडेवलप करोगे, कस्टमर्स के दिमाग में बढ़िया वैल्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ ये आप कर सकते हो। कंडक्टिंग अ वैल्यू चेन एनालिसिस। सबसे पहले एक्टिविटी फाइंड आउट कीजिए, जैसे आप लोगों ने फाइंड आउट की कि भाई अगर खाखरा जो है क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है तो रॉ मटेरियल में चेंज कीजिए एंड सो ऑन, उस हिसाब से। सो आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, देन अलोकेट कॉस्ट। अब कॉस्ट बढ़ सकती है यार, क्यों? जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया कि सर जीरा खाखरा अच्छा है पर उसमें जीरा कम है, तो आप थोड़ा जीरा उसमें ज्यादा डालें। तो अगर मैं जीरा उसमें ऐड करूंगा तो मेरी कॉस्ट में चेंज आ जाएगा, भले 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा जो भी है वो कॉस्ट में फर्क आएगा मेरे को। तो उस हिसाब से मुझे कॉस्ट में एलोकेट करना पड़ेगा एंड लेटर ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मतलब क्या है? इनबाउंड की कॉस्टिंग कितनी है, ऑपरेशंस की कॉस्टिंग कितनी है, आउटबाउंड की कॉस्टिंग कितनी है, मार्केटिंग की कॉस्टिंग कितनी है, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो मेरे को वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड देन
मेरे को जो एक्टिविटी मेरी फर्म को डिफरेंशिएट कर रही है उसमें चेंजेस करना है, मार्केट को प्रोडक्ट पे लॉन्च करना, सॉरी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, कंपैरिजन करना है कंपटीटर्स के साथ, या तो मेरे खुद के जो कस्टमर्स है उसके फीडबैक लेने हैं, एंड इफ इट इज अप टू द मार्क तो उसको कंटिन्यू करो। अगर वहां पे फिर से कोई चेंज आता है कि भाई सर अभी भी आपको यहाँ पे चेंज करने का जरूरत है, देन अगेन गो बैक टू द एनी एक्टिविटी, फिर से वहां पे कॉस्ट एलोकेट कीजिए, फिर से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फाइंड आउट कीजिए, फिर से उसको लॉन्च कीजिए, कंपटीटर से कंपेयर कीजिए, कस्टमर्स का फीडबैक लीजिए, एंड नाउ इफ फीडबैक इज गुड देन कंटिन्यू विद द सेम। अगर फिर से कोई चेंज आता तो अगेन एक्टिविटी फाइंड आउट कीजिए, एंड सो दिस इज द continuous process that every businessman or entrepreneur has to do throughout the business life. ये कंटिन्यूअसली उसको करना पड़ेगा, एक बार करने से नहीं होगा, कंटिन्यूअसली उसको ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, उसको करनी है, सो दैट एट लास्ट कस्टमर आपको दो अच्छे वर्ड्स बोलेगा कि नहीं प्रोडक्ट अच्छी थी। तो ये दो वर्ड्स के लिए आपको इतना सारा मेहनत जो है वो करना पड़ेगा, बट वही दो वर्ड्स जो है वो लाइफ में आपको ऊपर भी ले जाएगा, दो वर्ड्स की वजह से आप ऊपर जाओगे। सो दिस इज ऑल व्हाट वी कैन से अबाउट द प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज। नाउ जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको मालूम है कि भाई इनबाउंड का खर्चा इतना है, आउटबाउंड का खर्चा इतना है, मार्केटिंग का इतना खर्चा है, एचआर का खर्चा इतना है, दोनों एक्टिविटीज को जब आप कंबाइन करोगे प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज, तो आपको आपकी प्रोडक्ट की लैंडिंग जो है वो मिलेगी कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे को ₹1.5 में पड़ रही है। ये सब एक्टिविटी को मैंने कंक्लूड किया, इसको समराइज किया, तो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ₹1.5 मेरे को आ रही है। तो अब मेरे को मार्जिन भी डिसाइड करना होगा, मार्जिन भी सेट करना होगा कि मेरे को ₹1.5 में पड़ रही है, उसके ऊपर मैं थोड़ा मेरा प्रॉफिट ऐड करूंगा, ये प्रोडक्ट मैं ₹2 में मार्केट में सेल करूंगा। सो मार्जिन सेट करने के लिए, मार्जिन आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये एक्टिविटीज तो आपको करनी है प्लस और माइनस लेवल पे। तो क्यों ना आप कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल करते जाओ, जब ये एनालिसिस करते हो तो उसको भी ध्यान में रखो, सेम टाइम आपको क्लियर कट मार्जिन्स भी वहां पे मिल जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक वैल्यू चेन एनालिसिस जो सभी बिजनेसमैन को करना है। दिस इज द कंडक्टिंग वैल्यू चेन एनालिसिस। अब आप ये पॉइंट्स है आप ये देख लीजिए, अगर आपको कहीं पे डाउट्स है तो मेरे को बताइए, मैं यहीं पे हूँ और यहीं पे रहूंगा 4 बजे तक। So primary activities we have inbound logistics, operations, outbound logistics. And marketing and sales. इंस्टॉलेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस। आज आपने सैमसंग का डबल डोर का बढ़िया फ्रिज लिया है 1.5 लाख रुपए का, बट उसमें कुछ अगर एरर आ जाती है तो कोई आपको जवाब ही नहीं देता, तो दूसरी बार वो प्रोडक्ट आप परचेज नहीं करोगे, बाजू वाले को भी मना करोगे कि भाई वो मत ले, दूसरा कोई भी ले ले, सैमसंग का मत ले, क्योंकि वहां पे आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है। सबसे क्रिटिकल इसमें क्या है, सर्विस वाला, सिर्फ सर्विस वाला उसमें सबसे क्रिटिकल क्या है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? कंप्लेंट्स। आज कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में 100 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें 85 to 90 जो है वो सेटिस्फाइड है। 10% लोग ऐसे होंगे जिसको कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स होंगे, और वो 10% में से 5% तो ऐसे होंगे जिसको अगर सोने का बना के दोगे ना तो भी उसको कंप्लेंट रहेगी, तो वो 5% जो है उसको इग्नोर करो, उसको निग्लेक्ट करो। बाकी के जो जेन्युइन 5% है उसको कैसे भी करके कुछ भी करके, भले ही आपको घाटा हो तो भी
आप उसकी कंप्लेन रिसोल्व करो। दैट इज मस्ट। कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो जेन्युइन कंप्लेंट्स है उसको सॉर्ट आउट करनी ही पड़ेगी। इफ यू फेल टू डू सो तो ग्रेजुअली आपकी कंपनी की मार्केट रेप्यूटेशन जो है वो डाउन होती जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं जो कि ये कंप्लेंट्स के साथ रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा एथिकल बिहेवियर के साथ था। ये गोंडल के ही शायद महाराजा थे जो रोल्स रॉयस लेने गए थे, उसको मना कर दिया था, फिर उसने मंगवाई थी, फिर वो कचरा उसको कीपर वन में। तो ये चीज जो है वो वर्ल्ड लेवल पे आई थी, पूरे वर्ल्ड ने इसका नोट लिया था कि भाई ये तो कचरे के डिब्बे में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखिए कि वो ड्यूरेशन में कंपनी की इमेज कितनी डाउन हुई होगी। सो जो जेन्युइन कंप्लेंट्स है उसको आपको कैसे भी करके शॉर्ट आउट करनी ही है, भले वहां पे आपको नुकसान हो। आउटबाउंड में भी आ सकता है, ऑपरेशंस में भी आ सकता है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जैसे कि वहां पे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। आज जनरली जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था उसमें ऑपरेशंस मतलब अपना बनने का पूरा प्रोसेस है, एक डिपार्टमेंट में होता है, उसको ऑपरेशन कंसीडर करते हैं। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में जहां पे रेडीमेड कपड़ा आ जाता है उसके बाद उसका पैकेजिंग में लॉस होता है। तो दैट्स व्हाई उसको वहां पे इंक्लूड किया जाता है। अब ये एक्टिविटी जो है वो अगेन डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्री में जैसे कि होटल प्रोसेसिंग है तो वो मार्केटिंग एंड सेल्स में है, होटल प्रोसेसिंग आउटबाउंड में नहीं है, क्योंकि होटल आपको कहां से मिलेगा, मार्केटिंग वाले सेल्स वाले बंदे उसे भी तो होटल मिलेगा आपको। तो यहां पे होटल प्रोसेसिंग जो है वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में है। तो एक डिफरेंट जो इंडियन कंपनी की हिसाब से मैनेज करती है, फॉरेन की कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी की हिसाब से मैनेज करती है। तो इस हिसाब से आगे पीछे एक दो हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री इन्वॉल्व्ड। So guys, any doubts for value chain analysis? अभी एग्जाम में आया तो लिखना थोड़ा अपने आप प्रोजेक्ट कुछ नहीं करना, वेरी इजी है, सिर्फ SWOT एनालिसिस। गूगल बाबा जिंदाबाद, कुछ नहीं करना। Now, in supporting activities, you can see procurement, 2 minutes, that's it. So, technology developments, then HR, आज किसी भी कंपनी में जैसे कि कोई आगे एक बात बता रहा हूं, एक बात बताता हूं। भूल गया। So guys, this is overall your value chain analysis. फाइनल में 8 मार्क्स में आएगा, मिड सम में शायद आपको 4-4 मार्क के 2 पॉइंट्स आ सकते हैं, या तो 8 मार्क में भी आ सकता है, इट डिपेंड्स। बट यस, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, आईओ मॉडल, रिसोर्स बेस्ड मॉडल, विजन, मिशन, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। अभी और क्या रह गया, मतलब जो भी हमने किया है वो सभी इंपॉर्टेंट है, उसमें से काफी सारी चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। Tomorrow we'll start with the SWOT analysis. So that's it for the day. Thank you so much guys. Enjoy your day. Take care. अपना enrollment number